رانا خورشید آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی گزارنے کے لیے اسلامی نظام اور ایمانی دستور عطا فرمایا ہے۔ ایمان میں، اسلام میں ایک خاص چیز ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مقدس میں بھی بارہا اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبی کے ساتھ، انتہائی تاکید کے ساتھ اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ وہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ جس انسان میں جس قدر یہ چیز ہوگی، جس کے دل میں جس قدر اللہ کا تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا، اس کی زندگی میں اسی قدر خداوند قدوس کی بندگی آئے گی، گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے وہ پرہیز کرے گا۔ جس میں تقوی کی کمی ہوگی، کمزوری ہوگی، وہ خداوند قدوس کے حکموں کو نظر انداز کرے گا اور زندگی واہی تباہی میں گزارے گا۔ اس کی اتنی اہمیت تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے قبیلہ بنی سالم میں جو پہلا جمعہ پڑھایا ہے اور آپ نے جو پہلا خطبہ دیا ہے، ہم حیران رہ جاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کو پڑھ کر، آپ کے خطبہ کو سن کر، کہ آپ نے اپنے اس خطبہ میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اہمیت بیان فرمائی ہے، بلکہ آپ نے صرف اور صرف جس چیز کا تذکرہ کیا ہے اور پورا خطبہ جس موضوع کے ارد گرد گھومتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر، خوف کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے تذکرہ کرنے سے پہلے ذرا مکہ مکرمہ کے حالات کا سرسری جائزہ لیں۔ چلے ہم تصور کی دنیا میں مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں۔ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بدزبانی کر رہا ہے، کوئی ہے جو اپنے آنگن کو بہار کر، اپنے آنگن میں جھاڑو لگا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ڈال رہی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں عین سجدہ کی حالت میں کسی بدبخت نے غلاظتوں سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجھ آپ کے مبارک پیٹھ پر ڈال دیتا ہے۔ اس کا وزن ایسا ہوتا ہے کہ آپ اٹھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے ہیں۔ ایک مسلمان مکہ کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کس کس طرح کی زیادتیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے، زبانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے،
किस किस तरह से आपको सताया गया है। शब अबी तालिब में आप जो महसूर रहे हैं और आपने बाइकाट का जो लंबा अरसा गुजारा है, उसमें सहाबा का हाल ये था कि दरख्तों के पत्ते चबाने पर मजबूर हुए हैं। आप ताइफ को भी याद कर लीजिए कि आपके साथ वहाँ के अहबाशों ने क्या सलूक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म, आपका प्यारा बदन लहूलहान है, ज़ख्मों से चूर है। अहबाश पीछे से आपका मजाक उड़ा रहे हैं। हम हिजरत से पहले का किसी एक लम्हा, किसी एक दिन, किसी एक रात का तसव्वुर करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह के दिन गुजरे हैं और किस तरह की रातें गुजरी हैं। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ़ था, अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ वसी, प्यारा, मुबारक, क़ुव्वत सब्र, क़ुव्वत बर्दाश्त से लबरेज़ कि आपने दीन की राह में सब कुछ गवारा किया। ये सारे हालात अपनी जगह हैं, लेकिन नौबत यहाँ तक आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। रात में आपके घर का, जहाँ आपका क़याम था, पहरा लगा दिया गया कि जैसे ही आप निकलें तो एक बारगी आप पर हमला हो और नऊज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। ये सारे प्लानिंग हैं, सारे अज़ाइम व मंसूबे हैं। इसमें एक अल्लाह का बंदा अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजार रहा है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में आप अपने क़यामगाह से बाहर निकले हैं, लेकिन दुश्मनों के खौफ से आपको गार सौर में पनाह लेना पड़ा है। 3 दिन आपको वहीं क़याम करना पड़ा। दुश्मन वहाँ भी आपका पीछा कर रहे थे। खैर, आप गार सौर से निकलकर जब मदीना मुनव्वरा का सफ़र शुरू करते हैं तो इनाम के लालच में सुराक़ा इब्ने जाशुम का पीछा करना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस्ते बचाते मदीना मुनव्वरा पहुँचना, ये सब कोई मामूली वाक़या नहीं है, बल्कि दुश्मनों की दुश्मनी का एक एक वाक़या ऐसा है कि आदमी का दिल जज्बा इंतकाम से लबरेज हो जाएगा। आदमी चाहेगा कि हम उससे बदला लें, उसको सताएं और उसको सबक सिखाएं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए कि आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं और अपने जानिसारों के पास तशरीफ़ लाते हैं। ऐसे जानिसारों के पास जिसने कसम खाई थी कि हमारे जिस्मों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा हम आपकी हिफाजत के लिए लड़ते रहेंगे और जान देते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारे जीते जी आपका बाल बेका नहीं कर सकती है। ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों का, आपके अंसार का ये आपसे वादा था जो बैअत उक़बा उला और बैअत उक़बा सानिया के मौक़े पर हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं और आपने जो सबसे पहला खुतबा जुमा में कबीले बनी सालिम इब्ने अम्र इब्ने औफ में आपने जो खुतबा दिया है, पूरे खुतबा को पढ़ जाइए। हम हैरान रह जाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तवील खुतबा के अंदर कहीं मक्का मुकर्रमा के किसी एक वाक़े का जिक्र नहीं है, न आपके राहों में कांटे बिछाए जाने का जिक्र है,
अल्लाह तबारक व ताला के घर में, हरम में, ऐन खाने काबा के सामने जो आपके साथ बेशुमार बदसलूकियाँ हुई हैं, उसमें से किसी का ज़िक्र भी नहीं है। न ताइफ के वाक़ये का ज़िक्र है, न गारे सौर में महसूर और पनाह लेने का ज़िक्र है, न रास्ता की किसी सोबत और किसी दुश्वारी का तज़किरा है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन जानिसारों को, अपने उन साथियों को सबसे पहला जो पैगाम दिया है, आपने अल्लाह तबारक व ताला की हम्द की, अल्लाह तबारक व ताला से इस्तिग़फ़ार किया और अपने साथियों को मुखातब बनाकर सबसे पहली बात जो इरशाद फरमाई है, तो आपने फरमाया फ़इन्नी उसीकुम बितक़्वल्लाह फ़इन्नहु खैरु मा औसा बिहिल मुस्लिमुल मुस्लिम अन यहुज़्ज़हु अलल आखिरह व अन यामुरहु बितक़्वल्लाह, कि मैं तुम्हें अल्लाह से तक़वा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, मैं तुमसे ये वसीयत करता हूँ कि तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। और आपने फरमाया कि एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई को सबसे बेहतरीन अगर कोई वसीयत कर सकता है, कोई नसीहत कर सकता है, कोई हुक्म कर सकता है, तो वो ये है अन यहुज़्ज़हु अलल आखिरह, कि उसको आखिरत पर उभारे, कि तुम आखिरत की फ़िक्र करो, आखिरत का ध्यान अपनी ज़िंदगी के अंदर पैदा करो और आखिरत की फ़िक्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। व अन यामुरहु बितक़्वल्लाह, और अपने भाई को ये हुक्म करे कि तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। आप फरमाते हैं कि एक मुसलमान के लिए अपने मुसलमान भाई के लिए अगर कोई खैरखाही का जज्बा उभरे और अपने भाई के साथ अगर भलाई करना चाह रहा है, तो सबसे बड़ी भलाई यह है कि अपने भाई को आखिरत की फ़िक्र दिला दे और तक़वा का हुक्म कर दे। तवील खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़वा के फ़ज़ाइल और उसकी अहमियत को बयान फरमाया है। फिर आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के आखिर में इरशाद फरमाते हैं फ़अक्सिरू ज़िक्रल्लाह वअमलू लिमा बादल मौत, कि देखो कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करो, कसरत से अल्लाह अल्लाह करो और मरने के बाद की ज़िंदगी को ध्यान में रखकर आमाल को अंजाम दो। कोई काम करो तो देखो कि मरने के बाद इसका क्या नतीजा होगा। वअमलू लिमा बादल मौत। आदमी हैरान परेशान होता है, आज भी लोग मुख्तलिफ़ किस्म के धोखों में मुब्तला है। जब अल्लाह के ज़िक्र की बात आती है तो हमें समझ में नहीं आती है कि हालात इतने बिगड़े हुए हैं, माहौल इतना ख़राब है, अल्लाह अल्लाह करने से हमारा मामला हल हो जाएगा क्या। लोग शुबहात पेश करते हैं। आप एक तरफ अरब के हालात को देखिए, दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो बात नसीहत फरमाई है उसको देखिए। आपने पहले अपने साथियों को अंदर से मजबूत बनाना चाहा है कि जब आदमी के अंदर अल्लाह की बड़ाई आएगी, तक़वा आएगा, तो वो फिर हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहेगा। दुश्वारियाँ हज़ार आएँ, हालात हज़ार आएँ, बंदा जब अपने अंदर अल्लाह से लगाव को मजबूत करेगा, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करके अपने दिल में अल्लाह तबारक व ताला को बैठाएगा, तो इंशाअल्लाह राह की दुश्वारियाँ और ज़िंदगी के हज़ार हालात हों सब हेच हो जाएंगे और अंदर की उस ताकत के तुफ़ैल दुनिया में बंदा बढ़ता चला जाएगा, अल्लाह का सहारा लेगा और अल्लाह तबारक व ताला की ताकत व क़ुव्वत के सदक़े में सारी ताकतें हेच और ज़ेर नगी होती चली जाएंगी। उसको आपने समझाया है फ़अक्सिरू ज़िक्रल्लाह वअमलू लिमा बादल मौत फ़इन्नहु मन युस्लिह मा बैनहु व बैनल्लाह
यकफ़िहिल्लाहु मा बैनहु व बैनन नास। आपने इसको समझाया है कि देखो कि बंदा अगर अपने मामलात को अल्लाह से दुरुस्त कर ले, बंदा और अल्लाह के दरमियान में जो मामलात है, जो रिश्ता है, जो ताल्लुक़ है, अगर बंदा अपना रिश्ता अल्लाह से दुरुस्त कर ले, अपना ताल्लुक़ अल्लाह से दुरुस्त कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों के दरमियान, बंदों के जो लोगों के दरमियान मामलात हैं, जो रिश्ता है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी हो जाए। फ़इन्नहु मन युस्लिह मा बैनहु व बैन अल्लाह यकफ़िहिल्लाहु मा बैनहु व बैनन नास। अल्लाह तबारक व तआला बंदों के मामलात को अपने हाथ में लेंगे और अपने फजल व करम से उसको दुरुस्त फरमा देंगे। अच्छा, ऐसा कैसे होगा कि बंदा का रिश्ता अल्लाह से दुरुस्त होगा? अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से बंदों के हालात को दुरुस्त फरमा देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी समझाया, ज़ालिका बिअन्नल्लाह यक़ज़ी अलन नासि वला यक़ज़ऊना अलैहि व यमलिकु मिनन नासि वला यमलिकून मिन्हु। आपने फरमाया ये इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों पर फैसले का हक़ रखते हैं। अल्लाह का फ़ैसला लोगों पर नाफिज होता है। लोग अल्लाह पर अपना कोई फ़ैसला नाफिज नहीं कर सकते हैं। अल्लाह जो चाहते हैं वही होता है। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं तो हालात बिगड़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला चाह लेंगे तो हालात बन जाएंगे, संवर जाएंगे। फ़ैसला अल्लाह का नाफिज होता है। व यमलिकु मिनन नास वला यमलिकून मिन्हु। लोगों के मालिक अल्लाह हैं, लोग अल्लाह के मालिक नहीं हैं। अल्लाह लोगों की ज़बान के भी मालिक हैं, दिल के भी मालिक हैं, उसकी ताकत व क़ुव्वत, सल्तनत और उसके ज़र्रे ज़र्रे के मालिक अल्लाह तबारक व तआला हैं। ये तो धोखा में है लोग कि ये हमारी हुकूमत, हमारी सल्तनत, ये हमारी खेती, ये हमारा हथियार, ये हमारा साजो सामान, लेकिन असली मालिक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। लोग अल्लाह के मालिक नहीं हैं। यकीनी बात है, जब अल्लाह लोगों के मालिक हैं और बंदा का रिश्ता अपने असली मालिक से दुरुस्त होगा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से लोगों के दरमियान जो बिगड़े हुए हालात हैं उसको दुरुस्त फरमा देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में इरशाद फरमाया, वल्लाहु अकबर, और याद रखो तुम किसी शुबह में मत मुब्तला होना। अल्लाह ही की ज़ात बड़ी है, अल्लाह के अलावा किसी के लिए कोई बड़ाई नहीं। जो ताकतें हम देखते हैं, जो असबाब व वसाइल की दुनिया में ख़तरनाकियाँ देखते हैं, ये सब अल्लाह के नज़दीक हेच है, और अल्लाह अगर चाहें तो तमाम ताकतों का आन के आन में ख़ात्मा कर सकते हैं। आज जो मज़लूम हैं, ज़ालिमों के हाथ तबाह बर्बाद हो रहे हैं, आन के आन में अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे तो मज़लूम को वो ताकत व क़ुव्वत अता फरमाएंगे कि ज़ालिम हैरान रह जाएंगे, उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तमाम तर असबाब व वसाइल के बावजूद उन्हें मालूम होगा कि हमारी ताकत हमारे लिए किसी काम की नहीं है, हमारी क़ुव्वत हमारे काम आने वाली नहीं है। और मज़लूम जब अपना रिश्ता अल्लाह से दुरुस्त कर लेंगे, अपना ताल्लुक़ अल्लाह से दुरुस्त कर लेंगे, तो बेबसी में रहते ही हुए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रास्ते निकालेंगे कि आन की आन में इज़्ज़त व वक़ार, शान व शौकत और सल्तनत का ताज इनके सरों पर नज़र आएगा। उसके बाद आपने फरमाया, वला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। न कोई ताकत है और न कोई क़ुव्वत है। अगर कहीं कोई ताकत या क़ुव्वत है तो वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। अल्लाह की ज़ात अज़ीम तरीन ज़ात है, अज़मत वाली ज़ात है, बड़ाई वाली ज़ात है। इसलिए मेरे भाई और मेरे बुज़ुर्गों, आप गौर कीजिए कि तक़वा की कितनी अहमियत है, अल्लाह के डर को अपनाने की कितनी अहमियत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बिगड़े हुए हालात में, मक्का पूरा मुखालिफ, अरब के कबाइल मुखालिफ,
یہاں زندگی اور جان کے لالے پڑ رہے ہیں. کس طرح آپ مکہ مکرمہ سے آئے ہیں. اسباب و وسائل کی دنیا میں جو تناسب ہے اس کو ہم ملا سکتے ہیں، لیکن پہلی بات ان بے بسی اور کمزوری کی حالت میں آپ نے جو اپنے ساتھیوں سے فرمایا ہے تو فرمایا ہے کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. یہی اللہ تبارک و تعالی سے رشتہ کی مضبوطی تمہیں زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی دلائے گی، اور ہر فتنے کے وقت تم سرخرو ہوگو، اور ہر ذلت نظر آنے والی چیزوں کے وقت، ذلت نظر آنے والے حالات کے وقت تمہیں عزت و وقار ملے گا. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر اللہ کا تعلق پیدا کریں، اللہ سے رشتہ اپنا مضبوط کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب لوگوں کو موجودہ حالات میں قلبی ذہنی انتشار سے بچائے اور اپنا تقوی عطا فرمائے اور اطمینان قلب عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.